Hello students, welcome back to maths class. Already I taught you basic construction of angles. Now I will start with exercise 4.1. In that first question is construct quadrilateral. Quadrilateral means it is a closed figure made by 4 line segments. ये सब हम previously हमने पढ़ लिया है what is quadrilateral. Now it is given construct quadrilateral ABCD in which AB, BC, CD, AD, AC ऐसे कुछ दिया है. See here, sides are given here. Sides भी है, diagonals भी है. No angle is given here. When we go through this, no angle is given. तो जब भी कंस्ट्रक्शन होता है मैं हमेशा बोलती हूँ फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ रफ डायग्राम. तो पहले रफ डायग्राम कैसे आता है वो हम देखेंगे. Rough figure. So we have to construct here quadrilateral. तो quadrilateral के लिए तुम लोग ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर लो. और quadrilateral का नेम क्या है? ABCD. So write here ABCD. अब मार्किंग करते जाओ. AB is 4.4. So it is 4.5. Sorry, 4.5. After that BC 5.5, so this is 5.5. Next CD 4. CD कितना है? 4. Then AD. अब AD AB दिया है. AD is 6. That means what all sides of quadrilateral are given. उसके बाद यहाँ पे देखो AC भी दिया है. And AC is nothing but a diagonal. तो diagonal दिया है something 7 centimeter. So this is the rough diagram of the given quadrilateral. अब इसे हमें फेयर फिगर ड्रॉ करना है with the help of compass scale. When we go through this figure, अभी यहाँ पे बेस देखो. बेस क्या है? 4.5 है. And when we see this figure is divided into two triangles. एक यहाँ पे ट्रायंगल है और एक यहाँ पे ट्रायंगल है. And last year we have done the construction of triangles. Same idea यहाँ पे हमें use करके construction करना है. Okay. First base is given 4.5 AB. So I will draw first a line segment with 4.5. And you know how to draw 4.5. So this is my 4.5 line, that is AB. Okay, तो AB मैंने 4.5 ड्रॉ किया. अब पॉइंट A एंड पॉइंट B से कौन सा लाइन जा रहा है? देखो BC जा रहा है 5.5. So I will take rounder, that is compass, and measure 5.5. यहाँ पे BC 5.5 है तो मैं स्केल लेके और राउंडर से मैं मेजर करूंगी 5.5. एंड यू नो हाउ टू मेजर 5.5. ओके, सो नाउ माय राउंडर रेडियस इज 5.5. तो मैं B पे रखूंगी. नाउ यू कीप B, द राउंडर पॉइंट ऑन B एंड देन टेक वन आर्क लाइक दिस. ये आर्क आ गया. ओके, डन. नेक्स्ट, अब B से मैंने 5.5 लिया. अब A से मुझे क्या लेना है? 7 सेंटीमीटर. अगेन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड राउंडर. स्केल और राउंडर से 7 सेंटीमीटर मेजर करो. हो गया 7 सेंटीमीटर. अब AC है 7. तो पॉइंट A पे मुझे राउंडर का टिप रखना है. ओके, एंड रेडियस इज 7 एंड कट दिस फर्स्ट आर्क. सी इट इज कटिंग. फर्स्ट आर्क मैंने 5.5 लिया था. अब ये 7 लेके मैंने कट कर दिया. सो आई एम गेटिंग हियर 1 पॉइंट. दिस इज द पॉइंट. नाउ यू जॉइन द पॉइंट्स. Just I am joining the points here. Okay,
So this is nothing but C point. So here I am taking C. इतना ए कंस्ट्रक्शन तो हो गया मेरा. अब मुझे ये कंस्ट्रक्शन करना है. फॉर दैट यू सी हियर AD कितना है 6 सेंटीमीटर. अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास मेजर 6 सेंटीमीटर. और इस सब तुम लोगों को पता है कैसे मेजर करना है. सो AD 6 सेंटीमीटर. सो आई हैव टू कीप the tip of the rounder on A and take one arc like this. Okay. After that देखो AD हो गया. अब CD. C से कौन सा लाइन गया है? D लाइन गया है which is 4 सेंटीमीटर. तो अब मैं ये राउंडर 4 सेंटीमीटर लूँगी. 4 centimeter. So CD is 4. So I will keep the tip of the rounder on C and I will cut this first arc. Like this. Now you see, you are getting figure like this. Now the required point is this. So join this point. And join this. And this is nothing but D point. So I will mention this as D. See here. This is our required quadrilateral. उसके बाद जो भी हमने मेजरमेंट लिया था ना वो सब लिख देना है. We took this as 5.5 centimeter. We took this as 7. This as 4 and this as 6. So this is the fair figure. So whenever construction of quadrilateral is given, first with the help of given things, draw rough diagram. Using rough diagram, draw this fair diagram. Very easy construction. Hope you understood. Students, this is second one. Here we have to construct quadrilateral jump. Quadrilateral का नाम क्या है इधर? Jump. So whenever it is given, something is given, information और construction है, तो first हमारा task है we have to draw a rough diagram और rough figure. So rough figure it's a quadrilateral, तो ऐसे कुछ भी draw कर लेना. Okay, and this is jump, so it is JUMP, jump. Now we'll mention the sides here. JU 3.5, UM देखो UM 4, MP is 5, PJ is 4.5. Just I am writing the centimeters or the sides. PU is this. PU is given 6.5. Again you see here all sides are given and one diagonal is given. तो फर्स्ट हमें क्या ड्रॉ करना है बोलो तुम लोग. क्या ड्रॉ करूँ मैं फर्स्ट? पहले ए ड्रॉ करूँ, इसको किसको ड्रॉ करूँ? फर्स्ट आई हैव टू ड्रॉ JU. Yes, you are right. First I will start with JU and JU is given 3.5. You take 3.5 measurement and draw. This is 3.5. बहुत छोटा है. This is JU line. JU which is 3.5. अब एक बार हमारा बेस ड्रॉ हो गया ना तो हमारा आधा टास्क खत्म हो जाता है. अब J से कौन सा लाइन जा रहा है देखो. J से 4.5 JP जा रहा है. सो अगेन यू टेक राउंडर देन टेक 4.5. तुम लोग मेरे साथ साथ ही कंस्ट्रक्शन करना. मैं बहुत स्लो जा रही हूँ. सो आई एम टेकिंग हियर 4.5 बिकॉज JP इज 4.5. तो मुझे टिप कहाँ पे रखना है? J पे रखना है. सो आई हैव टू कीप द टिप ऑफ द राउंडर on J, then take one arc like this.
डन। ओके, अब जे से मैंने ड्रॉ कर लिया है जेपी। अब यू से कौन सा लाइन जा रहा है, पहले हम ट्रायंगल का देखेंगे, इस ट्रायंगल को हम देखेंगे। सो जेपी मैंने ड्रॉ कर लिया। नाउ आई विल ड्रॉ यूपी। यूपी कितना है इधर, 6.5। सो टेक 6.5। सो दिस इज 6.5, दैट इज यूपी। तो यू पे रखना है टिप, फिर इसको कट कर दो। देखो कटिंग ऐसे हो रहा है, व्हेन यू ऑब्जर्व क्लियरली यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। ओके, अगर कंफ्यूज होता है तो तुम लोग पहले 4.5 वाला है ना, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो है ना, नाउ आई एम गेटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट हियर एंड दैट इज नथिंग बट P पॉइंट। अब ज्वाइन कर दो। सो वी हैव डन विथ वन ट्रायंगल। ये देखो ए ट्रायंगल हमारा बन गया। अब हमें ए ड्रॉ करना है। ओके, अब यू से और एक लाइन कौन सा जा रहा है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। सो अगेन यू टेक राउंडर एंड मेजर 4 सेंटीमीटर। मेरे साथ साथ करो। सो आई एम टेकिंग दिस एज 4 सेंटीमीटर। अब मुझे कहाँ पे रखना है, देखो UM इज 4, सो मुझे पॉइंट, ए टिप मुझे पॉइंट यू पे रखना है। सो यू टेक 1 आर्क लाइक दिस। बहुत स्मूथली इसको हैंडल करना, थोड़ा सा इसे पॉइंट पे रख के थोड़ा सा उसको प्रेस करो तो वो बैठ जाएगा टिप, फिर आराम से मूवमेंट होता है। देखो ऐसे टॉप में पकड़ लो, आराम से होता है। अगर नहीं होता है टिप से तो तुम लोग इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ के भी कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे बच्चे उसको ऐसे ऐसे करते करते ना पूरा रेडियस हिला देते हैं, किसी का बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये देखो कितना मस्त। एक तो पहले नया ले लो और इसको टाइट कर दो, फिर आराम से मूवमेंट होगा, देखो, है ना। आफ्टर दैट 4 सेंटीमीटर हो गया। अब कौन सा बच गया इधर, 5। सो PM इज 5। अब राउंडर ले लो फिर से 5 सेंटीमीटर। हमेशा ना जब भी तुम लोग मेजर करते हो, ये जो टिप है मुझे 5 सेंटीमीटर मेजर करना है ना, तो 5 पे लगा देना। इधर ऐसे बुक में ऐसे स्केल रखो और 5 पे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे प्रेशर दे दो, तो ये जो टिप है ना वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। फिर इसको तुम लोग ऐसे ऐसे आराम से इसको मूव कर सकते हो। देखो ये खाली 2-3 फिंगर का ही काम है, ऐसे ऐसे करना है ना। और ये मैंने क्लासरूम में भी बताया था कैसे तुम लोगों को 2-3 फिंगर लेके बड़ा छोटा करना है। 5 पे रखो और 0 तक मेजर करना। सो दिस इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब मुझे P पे रखना है। देखो इधर PM 5 है, तो P पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास है, तो P पे रखना, थोड़ा सा इसे लगा के थोड़ा सा प्रेशर दे दो, फिर ऐसे कट करना, स्मूथली कट हो जाएगा। नाउ द इंटरसेक्शन पॉइंट इज हियर, सो यू जॉइन दिस। सो दिस पॉइंट इज M पॉइंट। अब फटाफट मेजरमेंट्स हम लिख देंगे। दिस इज 6.5 एंड दिस इज 4 एंड दिस वी हैड टेकन 5 एंड दिस इज देखो 4.5। दैट्स इट। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जंप हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट। हमें ना इसमें प्रीवियस आइडियाज यूज करना पड़ेगा। टिल नाउ जो मैंने 2 कंस्ट्रक्शन सिखाया उसमें हेडिंग वाज क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का एक नाम आ गया, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मोर हमें ड्रॉ करना है। इन दैट सी हियर ओनली 3 कंडीशंस आर गिवन हियर। OR is given, RE is given, EO is given. So whenever parallelogram more is asked,
फर्स्ट टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे तुम लोग कुछ भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर सकते हो, यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। रफ डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। दिस इज आवर रफ डायग्राम। ओके, अब जो जो दिया है पहले हम मेंशन करेंगे। OR इज गिवन 6 and RE is given 4.5 and EO is given. EO means this is given 7.5. ओके, अब आगे कुछ नहीं दिया है, बट वी नो दैट इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मैंने बहुत बार सिखाया है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिखाया था मैंने, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स अगर A 4.5 है तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, MO, देन दिस इज ऑल्सो 4.5। एंड इफ OR इज 6 देन अपोजिट साइड कौन सा है इसका, ME, so this is also 6. So here with the help of 3 condition हमें और 2 साइड फाइंड करना है। Why? Because it is a parallelogram. In parallelogram opposite sides are equal. अब जो मैंने पीछे कंस्ट्रक्शन किया वही सेम कंस्ट्रक्शन आ गया। सो फर्स्ट मुझे क्या ड्रॉ करना है, 4.5 दैट इज MO। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे MO 4.5 ड्रॉ कर दिया है। ओके, आफ्टर दैट मुझे क्या ड्रॉ करना है, MO के बाद मुझे टोटल 8 ट्रायंगल ड्रॉ करना है। फॉर दैट 6 सेंटीमीटर। सो विद द हेल्प ऑफ राउंडर यू मेजर 6 सेंटीमीटर। 6 मेजर किया, 6 कौन सा, ME है, तो मुझे पॉइंट M पे रखना है टिप, फिर ऐसे कट लेना है। ओके, सो लाइटली तुम लोग यूज करो। फिर OM 7 OE कितना दिया है, 7.5। तो 7.5 तुम लोग मेजर करो, स्केल एंड राउंडर कंपोस मेजर किया मैंने। O पे मुझे रखना इधर, सो द सेंटर पॉइंट इज O नाउ। अब जो प्रीवियस आर्क था उसको कट कर दो, सो इट विल कट लाइक दिस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। इसको फटाफट ज्वाइन कर दो। जो पीछे हमने किया वही सेम कंस्ट्रक्शन है। सो दिस इज पॉइंट E। उसके बाद अब हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। फॉर दैट O से कौन सा गया है, 6 सेंटीमीटर। तो फिर से मैं 6 सेंटीमीटर मेजर करूंगी। और 6 सेंटीमीटर है, O इज द सेंटर। सो O सेंटर, देन यू टेक 1 आर्क लाइक दिस। डन। देन अब E से ER दैट इज 4.5। तो मुझे 4.5 राउंडर पॉइंट लेना है। राउंडर का रेडियस 4.5। अब ER है, सो मुझे सेंटर पॉइंट मेरा E रहेगा। अभी राउंडर सेंटर पॉइंट इज E। अब ये जो प्रीवियस आर्क है उसको कट कर दो। देखो कट नहीं हुआ, तो डरना नहीं है कट क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब है पहले जो हमने आर्क लिया था वो छोटा लिया था, वो छोटा 6 सेंटीमीटर वाला था, तो इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दो। सी, नाउ दे आर इंटरसेक्टिंग। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, देन जॉइन दिस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। अब जो भी मेजरमेंट्स है वो यहाँ पे तुम लोग मेंशन करना। दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 4.5 एंड दिस इज 7.5। सो दिस इज मोर, मोर पैरेललोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4.1। हियर इट इज गिवन रोम्बस बेस्ट। अब यहाँ पे देखो बाप रे, 2 ही कंडीशन दिया है, तो कैसे कंस्ट्रक्शन होगा। यू कैन सी फर्स्ट वन, सेकेंड वन बहुत सारा उसमें इंफॉर्मेशन दिया था। फिर अभी थर्ड वन जो मैंने करवाया पैरेललोग्राम में, उसमें थोड़ा कम हो गया। अब रोम्बस में तो 2 ही आ गया कंडीशंस।
अब कैसे होगा? तो इसका मतलब है कुछ तो हमें रोम्बस का आइडिया अप्लाई करना है। मैंने अभी कहा था पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वही सेम आइडिया अब रोम्बस का हम अप्लाई करेंगे। रोम्बस में मैं बोलती हूँ ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या है रोम्बस? फिगर पैरेललोग्राम जैसा ही रहेगा, फिगर विल बी जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, बट इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। मैंने बहुत बार क्लासरूम में सिखाया है। अब जो दिया है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। BE इज़ 4.5, सो दिस इज़ 4.5। तो एक साइड BE 4.5 है तो सब साइड क्या हो जाएगा? ऑल साइड्स इक्वल है। चाहिए तो तुम लोग यहाँ पे मेंशन करके रख दो ऑल साइड्स इक्वल इन रोम्बस, ऐसे लिख के रखो सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो 4.5, दिस इज ऑल्सो 4.5 एंड दिस इज ऑल्सो 4.5। उसके बाद ET दिया है 6, ET मीन्स दिस 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये कैसे आया? जैसे पीछे हमने 3 क्वेश्चन किया है वही सेम फॉर्मेट में आया। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ BE, देन वी हैव टू ड्रॉ BT, देन वी हैव टू ड्रॉ ET। तो एक ट्रायंगल हो जाएगा, फिर ए ड्रॉ करो, फिर ए ड्रॉ करो, हो गया। सो वेरी इजी कंस्ट्रक्शन। एक बार तुम लोगों ने 4.5 लिया तो दैट्स इट, बार बार वही कंस्ट्रक्शन होगा। सो आई एम ड्रॉइंग हियर 4.5, फर्स्ट टू ड्रॉ, and 4.5 is nothing but BE. So I am mentioning here BE, which is 4.5. Now you take rounder. अब 4.5 मुझे मेजर करना है, स्केल की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये 4.5 है तो ऐसे रख के तुम लोग इसको यहाँ पे ही मेजर कर सकते हो। दिस इज़ 4.5। अदरवाइज यू कैन टेक स्केल और ऐसे भी मेजर कर सकते हो। सो दिस इज़ 4.5, राइट। तो ये मैंने ये ड्रॉ किया, देन इट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो पहले 6 सेंटीमीटर भी हम ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। सो ET is 6, so ET is 6, that means I have to put the rounder point here on E, then take one arc. So this is my required point, that is T, then join this. I think now you are feeling very easy. These questions are very easy. After that, see, this triangle is done. Now this is 4.5, this is 4.5. तो एक ही बार 4.5 मेजर कर दो और सेम कटिंग दोनों जगह। 4.5 मैंने मेजर किया। ES is 4.5, so ES, E पे रखना है पॉइंट, yes 4.5। देन TS is also 4.5, तो T पे रखो, then you cut like this, that's it. So this is the point, join this. So this is point S, and you write here 6 centimeter and 4.5. You can write centimeter here, 4.5 and 4.5. So this is rhombus BEST, best. Hope student you followed. In 4.1 we have such type of construction. In 4.1 we don't have any triangles, and total 4 questions were given in this. See, you can see in 4.1 total 4 questions are there. See, in first and second question so much of information was given. थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा कम हुआ, फोर्थ में तो टोटल कम, खाली 2 आ गया, बट स्टिल वी कंस्ट्रक्टेड ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गो विथ एक्सरसाइज 4.2 इन विच समथिंग डिफरेंट विल बी गिवन. अब देखो यहाँ पे एक ही डायगोनल दिया था, यहाँ पे एक ही डायगोनल दिया था ना, तो नेक्स्ट 4.2 में 2 डायगोनल्स मिलेगा उधर. ओके, बट till now you keep practicing 4.1 students. Thank you.